गौतम शाह भी जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल से, उनसे बात करते हैं। गौतम, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। गौतम, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Yeah, hi, morning. So क्या व्यू है आपका इस समय मार्केट पे? What's your strategy? Well, it's been a phenomenal run this January. I think it's difficult to believe that we were trading at levels of 1700 just a couple of weeks back, and I think this move has been phenomenal. It's been non-stop. But at the same time, you have characteristics which suggest that this is a reversal and not just a rebound, what we saw in early December. But the fact that we are so quickly at levels of 8400, we think that the juice for this rally is now limited, because I think as the market is moving higher, it is turning more and more overbought on the charts. And I think as the Nifty gets closer to 8500, I'm sure it's going to find a lot of selling pressure. So we believe that this leg of the up move should find resistance somewhere in the 8500, 8550 band, which is actually our near-term target. And post hitting that zone, you could actually see a quality consolidation or quality pullback. And post the same, the next leg of the up move could start off. But I think the good thing is that the market has formed a very strong base at lower levels. I think 8150 to 8200 now becomes a very strong support area. And if at all at any point of time there is a decline close to the same, it should be used as a buying opportunity. I think investors should not get carried away looking at the screen of the last 10 days, because I think the next 20 trading sessions is going to be very important. You have some very important events, that are hitting the market, and therefore a slightly cautiously optimistic approach would make a lot more sense than getting carried away. जी गौतम, उसी हिसाब से फिर निफ्टी बैंक पर क्या करस्पॉन्डिंग लेवल्स हो सकते हैं जो कि नियर टर्म रेजिस्टेंस के तौर पर आ सकते हैं सामने? Well, the most important takeaway is the fact that this Nifty move has been backed by the Bank Nifty. Early December, you had that rally from 7900 to 8300, but in that rally, the Bank Nifty underperformed. But now the Bank Nifty is leading from the front. The problem is the Bank Nifty has gone too far too soon. Trading at levels around 19,000, is a very big move, and we would give another 400 to 500 points on the upside. So around 19,500, 19,600 is where we see quality resistance, and from around those levels, you could actually see some pullback or consolidation for that index. So not much significant upside, but right now I think the momentum is strong. The focus is on the PSU names, and I think even if the Bank Nifty sees some consolidation, the PSU banking stocks should continue to do very, very well. जी, चलिए हरी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। श्रीकांत, आप इस समय जैसे आपने कहा कि एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है, 8600 तक जा भी सकता है इंडेक्स बिफोर बजट। इन दैट केस आप कौन से सेक्टर्स पर इस समय सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं विद इन द इंडेक्स? इज इट बैंकिंग जिसने एक अच्छा अपमूव देने की कोशिश की है, या फिर ऑयल एंड गैस में देखना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे जो आने वाला पीरियड रहेगा उसमें डेफिनेटली एनर्जी, मेटल्स, ये लोग तो परफॉर्म करेंगे ही, और क्योंकि उनमें अच्छा एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट और लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के अंदर ये सब स्टॉक्स चल रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेटल स्पेस एक ऐसा रहेगा कि जो काफ़ी परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली उसमें स्टील, उसमें काफ़ी एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। JSW स्टील, टाटा स्टील, इनमें हमें लगता है कि यहाँ से भी एक 10 से 15% का एक इजाफा और देखने को मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो PSU बैंक्स, उनमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है, और स्पेशली अगर उनका लीडर जैसे स्टेट बैंक है, इसने जो US इलेक्शंस के बाद के जो लोज बनाए थे उसको अभी तक उसने ब्रीच नहीं किया है। और अगर आप उस कंपैरिजन में निफ्टी को देखते हो या बैंक निफ्टी को देखते हो तो उसने उन लोज को तोड़ दिया था। 8000 के आसपास 7900 के लोज को निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया था, लेकिन स्टेट बैंक ने अभी भी उसको होल्ड किया हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें काफ़ी अच्छा इन्फ्लो हुआ है, और आने वाले टाइम में ये जो PSU बैंक्स है वो भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन वेरी फर्स्ट अगर आपको फोकस करना है तो मुझे लगता है स्टेट बैंक, PNB, इनके मूवमेंट को हम ट्रैक करेंगे। इनका ओवरऑल फॉर्मेशन अगर अच्छा हो जाए उसके बाद हम इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। लेकिन राइट नाउ स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 स्टॉक पे हम बुलिश हैं और हम हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। एनर्जी स्टॉक्स में जो हमारे प्रीफर्ड पिक्स है उसमें पेट्रोनेट LNG है। ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से, और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेग के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर इसका नेक्स्ट लेग अगर आता है तो ये मुझे लगता है स्टॉक शायद 600 या 650 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। तो नेट एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये 3 सेक्टर हम कंटिन्यूसली
रिकमेंड करते रहेंगे और उसमें बुलिश रहना आई थिंक एडवाइजेबल रहेगा। जी गौतम, डीमोनेटाइजेशन के बाद से ही थोड़े क्वार्टर 3 अर्निंग्स को लेकर डर था मार्केट में। हालांकि अभी भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो या फिर एनबीएफसीज हो, इनकी अर्निंग्स ड्यू हैं, लेकिन अब तक के जो अर्निंग्स आए हैं, बड़ी अर्निंग्स आए हैं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडसइंड बैंक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। अब तक के इन 4 बड़ी अर्निंग्स आपके की टेक अवेज क्या हैं? Well, I'm more of a technical guy, so I go by the charts. But I think the question that you ask, I think, is very valid, because that was really the concern in the minds of market participants as we started off January. And I think some of these big earnings have really said that the demonetization effect has really not been as much as people were talking about it. And I think that's a very positive sign. I think the first indication you got when IndusInd Bank came up with results, and I think the manner in which some of the banking stocks have rallied post the IndusInd Bank results, I think is an indication that the market is a little complacent right now. I do get the belief that as we have more and more results coming in, even if there is no major disappointment, even if it's a minor disappointment, I think the market will take it in its stride and use it as an opportunity to go higher, because I think a lot of negatives have already discounted into the price, and if at all there is any positive, I think the markets will run up like they have already done in the last a couple of weeks. But more than global factors, I think some of the US market factors will take center stage, post January 20th, and that's something Indian investors should look at closely, because that's a very important global development that is taking place. इस मार्केट में एक जो कंसर्न बनी हुई है श्रीकांत, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की विंडो इक्विटी के लिए चेंज होने को लेकर। ये प्राइस्ड इन है मार्केट में, या फिर इट कुड कम एज अ नी जर्क रिएक्शन फॉर मार्केट? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ फ्लो है, मुझे लगता नहीं कि ये न्यूज़ जो है लॉन्ग टर्म टैक्स की या उसके ऊपर जो भी अनाउंसमेंट आने वाला है वो एकदम से एबॉलिश नहीं करेंगे सर। ये इसमें कुछ इसके डेफिनेशन चेंज होंगे, शायद इसका थोड़ा पीरियड बढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इसकी वजह से कोई मार्केट में बड़ा सेटबैक आना चाहिए। ये सेंटिमेंटल सेटबैक होगा उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद। उस वक्त जो भी सेल ऑफ आएगा, आई थिंक मार्केट उसको वापस डाइजेस्ट कर लेगा, बिकॉज ओवरऑल अगर आप मार्केट का सेटअप देखते हो तो बिकॉज ऑफ दिस डीमोनेटाइजेशन एंड यूएस इलेक्शन के पीछे ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, उसने अच्छा खासा अपना एक बेस बना लिया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम शायद एक हायर बॉटम बनाने नीचे आए, या तो मार्केट अगर वापस 8,000 के आसपास आए तो एक शॉर्ट लिव्ड सेल ऑफ हो सकता है, उसके बाद हम वापस एक रिकवरी देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फॉर्मेशन जो मार्केट का है वो अच्छा हो रहा है।